Unit number 8, Biomechanics and Sports. This is the new syllabus. 3 topics are in the syllabus, in the revised syllabus. It's a very simple chapter, but this topic is based on the technical terms. This topic is based on the technical terms, types of movement. Otherwise, the 2 topics are very simple and one reading is required and we can make the answers in these 2 topics, but this is the very important topic for the examination point of view. And I think so you can see the 1 marks and the 3 marks questions in the main exams about this topic now. Meaning and the importance of biomechanics. Bio and the mechanics, they are the 2 words. Bio means human motions or living things, whereas the mechanics is a field of physics. It means bio and the mechanics and the forces that act on the bodies in motions. This is the mechanics now. So, जब हम ह्यूमन मोशन की स्टडी करते हैं, फोर्सेस के साथ जब एक्ट होती है, तो ह्यूमन मोशन की जब स्टडी करते हैं, दिस टर्म इज नोन एज बायोमैकेनिक्स. 1 मार्क्स के टर्म पर हम सिंपल से वे में डेफिनेशंस. द टर्म बायोमैकेनिक्स इज a combination of 2 words, that is bio and the mechanics. Here bio is a Greek word that refers to life or living things, whereas the mechanics refers to the field of physics and the forces that act on the bodies in motions. बड़े सिंपल से मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करते हुए अपना मीनिंग एग्जाम में बायोमैकेनिक्स के बारे में लिख सकते हैं. वेयर इज द इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा. 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. इंप्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स की बायोमैकेनिकल एनालिसिस के द्वारा हम परफॉर्मेंस के स्पोर्ट्स को परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं. हेल्प्स इन रिसर्चिंग वर्क में हेल्प करता है. नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स, इंप्रूव इन ट्रेनिंग टेक्निक्स, डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन body and the improvement in techniques. These are the importance, and I think so all these are the simple point. One of the 2 readings are required to read, to explain, to learn these points, and we can explain much more point in the examinations very well. This is the very simple topics. Whereas the second topic, this is a very important topic for the examination point of view. Types of movement. Movement, it is of 4 types. Only the 4 types movements are a part of syllabus. ये 4 ही movements है जो हमारे syllabus का part दिया हुआ है, क्योंकि it is specially written in this chapter now. Flexion, extension, adductions and the abductions. There are the 4 movement, और ये movement बड़ा important part है, क्योंकि इनकी हमें क्या ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, किन से क्वेश्चंस बनेगा 1 मार्क्स में और कहाँ एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए एग्जाम में आंसर बनाना है. फ्लैक्सोन, देखिए, I will explain the flexion and second movement is extension. There are the 2 opposite actions movement here. Extension, exceed the arms. This is called the extension movement. If you perform the stretching, this is क्या? This is the extension movement. Just opposite, flexion. Increasing angle between the 2 body part, this is called the extension movement. Whereas a decreasing angle between the 2 body part, this is called the flexion movement. ये फ्लैक्सोन एंड एक्सटेंशन क्या हो गया? इट रेफर्स टू द मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द 2 बॉडी पार्ट. दिस इज कॉल्ड द फ्लैक्सोन. व्हेयरएज द एक्सटेंशन जस्ट अपोजिट, इट रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट. इट मींस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन द 2 बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन एंड द फ्लैक्सोन मूवमेंट. दैट आर द सिंपल टर्म्स. और थ्रू द डायग्राम्स इट इज एक्सप्लेन. इन डायग्राम की इमेज को माइंड पर रखिए. एक्सरसाइज के थ्रू आप देख सकते हैं कि आर्म्स स्ट्रेचिंग एंड डिक्रीजिंग एक्शंस, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन एंड द एक्सटेंशन. व्हेयरएज द एब्डक्शंस, इट इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन. मिड लाइन से आगे जाता है. आर्म एक्शन साइडवेज और बेंडवेज. अगर आप ये देखें तो इस मूवमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन. अगर ये आगे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द एब्डक्शन मूवमेंट. व्हेयरएज द एडक्शन मूवमेंट, ये मूवमेंट डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किए हुए, सो बड़े आराम से हम काम करते हैं. अप एंड द डाउन, साइडवेज अप डाउन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द अबडक्शन मूवमेंट. व्हेयरएज द एडक्शन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द एडक्शन मूवमेंट, मूविंग अ पार्ट टुवर्ड्स द मिडल लाइंस. दिस इज कॉल्ड द. इट मींस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि विच एंगल इज इंक्रीजिंग एंगल, विच इज डिक्रीजिंग एंगल अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड द टुवर्ड्स द मिड लाइन. ये अगर हम ध्यान रख लें तो इन चारों ही मूवमेंट्स को हम थ्रू द डायग्राम्स एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर बना सकते हैं. 1 मार्क के टर्म पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर ये इन मूवमेंट से बनेंगे और इन्हीं में विच इज द इंक्रीजिंग एंगल, तो हमें नेम्स को आइडेंटिफाई करना और टिक मार्क करना है. So this is the important part in this chapter.
Diagrams are also given. Number third topic, Newton's law of motion and their application in sports. Newton's law of motion आप बचपन से थर्ड क्लास ऑनवर्ड सिस्टमेटिक वे में साइंस में पढ़ते आ रहे हैं और यू नो अबाउट दैट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ एक्शन रिएक्शन, दैट आर थ्री न्यूटन्स लॉ और इन्हीं पर इनके एप्लीकेशन दिए हुए हैं। सब्जेक्ट में चूंकि हम जानते हैं ये फिजिक्स नहीं है कि यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली उस लेवल पर हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेगा इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, वेयर इज रिक्वायर्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, इन विच कंडीशंस विच न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे एंड बड़े आराम से हम समझ सकते हैं उन एग्जाम्पल वो जो हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। सो ये टर्म आप लोगों के लिए बड़ी सिंपल है, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम में you can understand very well. So these are the laws are given now, law of inertia, accelerations, और सिंपल सम इनके लैंग्वेज को यूज करते हुए हमें एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस बनेगा 3 मार्क्स में, तो इनके एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर फॉर यू। मूवमेंट, 4 मूवमेंट्स आर गिवन, फ्लेक्सोन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शंस, वो हमें ध्यान रखने हैं। बाकी तो 2 टर्म्स जो है वो अगर हम एग्जाम टाइम में पढ़ लें, सिर्फ रीडिंग कर लेंगे तभी अपना आंसर हम बना सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8। These steps will help you to prepare this chapter. It's a very simple chapter for you. Unit number 9, psychology in sports. The chapter is very simple, but चैप्टर को कंप्लीट करने में हम अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं और उन्हीं से अपना आंसर्स हम बिल्डअप करेंगे। आई थिंक सो मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए रीडिंग सेक्शन में कन्वर्ट होगा, बट माइनर थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज द कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन द रीडिंग सेक्शंस। नाउ प्रीवियस लाइफ के में जो हम लोगों ने सर्कमस्टेंसेस देखे हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर हमें इसका आंसर्स लिखना है एग्जाम में, और हम कितना अच्छा क्वालिटेटिव आंसर बना पाते हैं इस क्लासरूम की इमेजेस के अकॉर्डिंग आप उससे फॉलो करते हुए अपना आंसर बनाएगा। बट मेमोरीज में ये बारीकियां रखिए और इनसे अपने आंसर्स हम खुद इन टॉपिक से रिलेटेड बना पाएंगे। बट व्हाट वी मस्ट नो, सर्टेन थिंग्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे आर द अनचेंजेबल टर्म्स। सो रिमेंबर दीज अनचेंजेबल टर्म्स इन दिस चैप्टर, और इनके डिस्क्रिप्शंस को हम अपने इमेजिनेशन से प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लिखेंगे। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, व्हाट इज साइकोलॉजी? जनरली एवरीवन रिलेट विद द माइंड्स, बट माइंड, द स्टडी ऑफ माइंड इज नॉट द साइकोलॉजी। Starting of the 16th century, the psychology word was introduced by some philosopher, Aristotle, Plato, they are the Greek philosopher. They introduced the psychology in the word. In the starting, in the psychology, we will study the soul. Soul is invisible, so we cannot find out the reasons by the study of the soul. So after the few years, the soul is removed in the psychology. Now, at the end, almost end of the 16th century, the second concept which is entered in the psychology, that is called the consciousness. It will also remove after the 4 years. At the end of the 16th century, the third concept which is entered in the psychology, that is mind. The third concept which is entered, mind. Psycho and the logos, they are the 2 Greek words. Psycho means mind, logos means study. So mind के study हम आज तक भी करते आते हैं, but 2000 आते भी mind को remove करना पड़ा because mind के study से भी हम कोई reasons को find out नहीं कर पाए, और वो reasons जो होते हैं उन्हीं को हमें find out करना होता है psychology में. So it will also remove. And number 4th concept which is entered in the 2000th century, that is the behavior. Now in the present timing, psychology is the study of the behavior of the person. This is called the human psychology. ह्यूमन साइकोलॉजी में हम किसी भी व्यवहार मतलब ह्यूमंस के बिहेव का स्टडी करते हैं, और बिहेव में वो सभी कारण आ जाते हैं जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि किस कारण से ये अपना बिहेव चेंजेस हो रहा है. सो दिस इज द साइकोलॉजी. वैसे ही बिकॉज साइकोलॉजी सो मेनी ब्रांचेस, चाइल्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, एरिया बाउंडेड किया हुआ है. यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे के व्यवहार का अध्ययन, एनिमल साइकोलॉजी में एनिमल्स के बिहेव का स्टडी करते हैं. उसी प्रकार से एक और टर्म यूज की है, वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड. और इसी को आप कोई डेफिनेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़े से वर्ड इंप्रूव्ड लैंग्वेज में यूज करते हुए. अगर आप चाहें तो एग्जाम में हम डेफिनेशंस के रूप में भी लिख सकते हैं. नाउ साइकोलॉजी समझने के बाद अब चलते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं. द 3 टॉपिक्स आर गिवन: पर्सनालिटीज, मोटिवेशंस एंड द
एग्रेशंस। अगर आप देखें तो तीनों ही टॉपिक बड़ा नोन है, अननोन नहीं है, बट हमें कुछ अनचेंजेबल टर्म्स जो इसमें दी हुई है उनको ध्यान रखना है और उनके डिस्कशंस को रीडिंग सेक्शन से हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट टॉपिक पर्सनैलिटीज। व्हाट इज पर्सनैलिटीज? देखिए एक क्वेश्चन पुट अप हुआ था, डिफरेंशिएट बिटवीन द पोस्चर एंड द पर्सनैलिटीज। पोस्चर एंड द पर्सनैलिटी दोनों में डिफरेंस क्या है? पोस्चर शोज द आउटर अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटीज। पोस्चर्स जनरली पोस्चर्स का मीनिंग क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोन्योर, मींस पुट ऑफ द प्लेस। इट मींस बैलेंसिंग द बॉडी इन अ प्रॉपर और accurate manner while moving, running in the walking. So this is the meaning of the word postures. Whereas the personality क्या होती है? Personality is the sum total of the one's behavior. जो हम different directions में behave करते हैं उन सबका total मिला के एक जो बनता है, this is called the best personalities. So this is the difference. Posture and the personality. Posture shows the outer appearance of the body. It is one of the dimensions of the personality, whereas the personality is the sum total of the one's behavior, that is called the personalities. ये meaning ये लिखा हुआ है, the word personality is derived from the Latin word persona, which means mask. The mask was worn by the various actors in dramas in the days of ancient Greek civilizations. So यहाँ से हमें इन सबको थिंग्स को जो बारीकी हम लोगों ने सुनी है क्लासरूम में पर्सनैलिटी के बारे में, उसको यूज करते हुए हम अपना डेफिनेशन सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मीनिंग पर क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में वो ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन कभी कभी आ जाता है तो आराम से हम मीनिंग अपना बनाते हुए भी एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी से अनचेंजेबल टर्म की ओर। कुछ जनरल क्वेश्चन और बनने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ से बनती है, तो माइंड पर ध्यान रखिएगा। डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटीज, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटीज? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। डायमेंशंस ह्यूमन बॉडी पर्सनैलिटी की तरह 4 डायमेंशंस। 4 डायमेंशंस क्या है? सबसे पहला डायमेंशन फिजिकल डायमेंशंस, नंबर 2 इज मेंटल डायमेंशंस, नंबर 3 इमोशनल डायमेंशन, एंड नंबर 4 इज सोशल डायमेंशंस। देयर आर द 4 डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटीज। इट मींस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड द सोशल, देयर आर द 4 डायमेंशन। और इन चारों ही वर्ड जो कि बहुत सिंपल सी वर्ड्स हैं और हम आराम से इनके डिस्क्रिप्शंस को अपनी लैंग्वेज में हम बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। वेरेज एक और क्वेश्चन जनरली कॉमन क्वेश्चंस के रूप में कभी भी बन सकता है, माइंड पर रखिएगा। Physical education and the sports activities plays an important role to improve the personalities. Justify answers, comment it now. ऐसे क्वेश्चन से कभी बन जाए बाय द वे, तो हमें कुछ नहीं करना है, इन्हीं चारों डायमेंशंस को इम्प्रूव कीजिएगा, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन प्लेज अ important role to improve the personality. Physical development, mental development, emotional development and the social development. इन चारों ही डायमेंशंस को अगर इम्प्रूव करते हुए एग्जाम में लिखिए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी इससे बना सकते हैं। दे आर द कॉमन क्वेश्चंस अबाउट टॉपिक। जनरली इनसे क्वेश्चंस कभी शायद बन जाए बाय द वे, तो हम ये इमेजेस ध्यान रखिएगा और इनको इन वर्ड को अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रेजेंट सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है types and the traits of the personalities. Specific types and the traits are given. I want to tell you the one more thing. कभी कभी एग्जाम में कुछ टिपिकल वे में क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो शायद बुक में डिस्क्रिप्शंस उस लेवल पर नहीं दिया हो, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं वो बारीकियां आज इसी चैप्टर के थ्रू बताऊंगा कि हमें ऐसे आंसर्स लिखने का क्या तरीका और मेथड यूज करना है। टाइप्स एंड ट्रेट्स आर गिवन। देखिए I think so in 2014-15 the questions was put up, but in the syllabus what was written, the types of personalities, no specific type was mentioned by the CBSE in that particular years. I think in which year 14 in the 15 in the but आप देखिए चैप्टर का नाम क्या है? साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इन मतलब इन मोस्ट ऑफ द बुक्स द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज गिवन नाउ। साइकोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट ने 4 प्रकार की पर्सनालिटी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। ये देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटीज। ये 4 प्रकार की पर्सनालिटी को साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि चैप्टर का नाम साइकोलॉजी है, सो मोस्ट ऑफ द बुक्स में साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन, बट द प्रॉब्लम इज दैट in the particular year the questions was built up in the examinations, describe the Sheldon classification of the personality and what are the uses of this personality in the games and the sports. अब आप देखिए चैप्टर में सपोज करो अगर कोई बच्चा जो, क्योंकि बुक्स विल रिकमेंड बाय द स्कूल और स्कूल ने जो बुक्स रिकमेंड की है बच्चा उसे पढ़ता है और उसमें वो क्लासिफिकेशन ही नहीं है जो कि बुक में लिखा हुआ है।
बुक में तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चंस बाय स्पेसिफिक राइटर्स नेम आया हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, ये साइकोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और हम साइकोलॉजी को यहाँ एक टॉपिक के रूप में या चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी की डेप्थ बहुत है। अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनालिटी आर गिवन नाउ। डिफरेंट प्रकार के राइटर्स ने अलग अलग प्रकार से ये क्लासिफिकेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। पर चूंकि हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी को एक चैप्टर या यूनिट के रूप में, एक टॉपिक के रूप में पर्सनालिटी को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस आए तो हाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज डिस्क्रिप्शंस आर नॉट गिवन, हाउ यू विल राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो देखिए अगर हम ये अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप उनका किस प्रकार से आंसर लिखें वो देखिए। क्योंकि जब ये क्वेश्चंस बना था और आफ्टर दे देखिए एनसीईआरटी टीचर्स दे विल मेक द पेपर्स, डिफरेंट टीचर्स दे विल मेक द पेपर्स ऑफ सीबीएसई, बट जब आप आंसर की बनती है तो सीबीएसई की रिव्यू कमेटी बनती है और वो देखती है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, तो वहां पर क्वेश्चंस के आंसर की में क्या अमेंडमेंट किए गए थे वो और क्या सोच करके अमेंडमेंट किए गए थे। क्वेश्चन के आंसर की में जब चेक किया गया तो साइकोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशंस पर तो फुल मार्क्स दिए हुए थे और लगा के शेल्डन क्लासिफिकेशंस पर भी फुल मार्क्स दिए हुए थे। इट मींस क्वेश्चन शेल्डन के नाम से पूछा हुआ है, उस पर तो 5 मार्क्स मिलेंगे ही सही, लेकिन जिन बच्चों ने उसकी जगह साइकोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन लिखा तब भी उनको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ था, सो उसकी जगह इस पर भी क्लासिफिकेशन पे मार्क्स दिए गए थे। इट मीन्स ये एक तरीका होता है। हम क्या तरीका यूज करें ऐसे क्वेश्चन में कि in case questions was put up in the examinations, the descriptions was not given in the booklet, how you write the answers of these questions. So this is the technique to write the answers. Whatever the contents are given in the booklet, if you write these contents in the answer of that questions, marks to be given by the CBSE. ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कंटेंट्स आपकी बुक में उस टर्म के बारे में लिखे हुए जो क्वेश्चन में पूछी गई है, अगर आपने उन टर्म को यूज करते हुए एग्जाम में आंसर बनाया तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा ऐसे क्वेश्चन कि सर शेल्डन वाज नॉट गिवन, हाउ वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो आपको 0 ही मिलेगा। वेयरएज ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं बाय द वे, तो आप क्या करें कि व्हाटएवर द कंटेंट्स आर गिवन इन द बुकलेट अबाउट अ टर्म, यू हैव टू राइट दीज कंटेंट्स। जो भी कंटेंट्स आपको उस क्लासिफिकेशन के बारे में आपकी बुक में अवेलेबल है, जो आपने पढ़ी है, अगर आपने वही कंटेंट्स एग्जाम में लिख दिए तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये टेक्निक से ऐसे क्वेश्चंस में जो डिफरेंट प्रकार से कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ एस्टेब्लिश है और हम उस सब्जेक्ट को एक टॉपिक या चैप्टर के रूप में यहाँ पर इस बुक में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स में हम फिजिक्स लेना चाहते हो, हर सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट को हम चैप्टर या टॉपिक के रूप में इस बुक में हम पढ़ते हैं। सो डेप्थ उन सब्जेक्ट की अलग है और उस डेप्थ को यूज करके अगर हम कोई क्वेश्चन इस प्रकार से बिल्डअप हो जाए तो आप यही तरीका होता है जिससे अपना आंसर्स बनाते हुए जाएंगे तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और इस स्टेटमेंट को आप कितनी सारी सीबीएसई की ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम में भी चेक कर सकते हैं, जहां पर कि ऐसे और ला के क्वेश्चंस को राइट किया हुआ है। Now, this year only the 3 classifications especially it is mentioned in the syllabus, और इन तीनों के अलावा और 4th क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अब ये टेक्निक यहाँ पर काम नहीं करेगी। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी किसी भी चैप्टर से अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आपको ये टेक्निक यूज करते हुए अपना आंसर फॉर्म करना है। Now, 3 classification, Sheldon classification of the personalities, number 3 दिया हुआ है Carl J. Jung classifications, and the number 3rd is Big Five theories. Number 1st classification is called the Sheldon classification. Sheldon ने क्या किया? Based on the body structure, the Sheldon classified the personality in 3 ways. Based on the body structure, body के structure में बेस्ट ये 3 classifications उन्होंने दिए हुए हैं शेल्डन ने। एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक, ये 3 क्लासिफिकेशन हैं। अगर हम बॉडी के शेप को देखें तो 3 प्रकार की बॉडी जनरली हमें दिख जाती है। एक होता है लॉन्ग हाइटेड, एक होता है मीडियम हाइटेड, एक होता है शॉर्ट हाइटेड पर्संस। ये 3 बॉडी स्ट्रक्चर्स अगर आप डायग्राम में देखें तो 3, एक जिनकी लंबाई ज्यादा होती है लॉन्ग हाइटेड, एक मीडियम हाइटेड एंड शॉर्ट हाइटेड ना हो। इन्हीं 3 फिगर को ध्यान रखिएगा। मेसोमॉर्फिक मतलब मीडियम हाइट हो गया, एक्टोमॉर्फिक मतलब लेंथ इज रिक्वायर्ड, इट मींस हाइटेड पर्संस, एंड द एंडोमॉर्फिक शॉर्ट हाइटेड पर्संस। इन 3 वर्ड को ध्यान रखिएगा। अब इनके डिस्कशंस में आप रीडिंग सेक्शन को यूज कीजिएगा। जनरली क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक लो फैट वाली, फैट की होता ही नहीं बॉडी में, जनरली एंजाइटी, डिप्रेसिव ज्यादा होते हैं ये पर्संस। वेयर मेसोमॉर्फिक मस्कुलाइन शेप है, मस्कुलाइन बॉडी है। वेयर ये क्या होता है? हाई फैट वाली मतलब
फेट इनमें बहुत ज्यादा होता है, सो दे आर कॉल्ड नाउ। ये ध्यान रखिएगा, हमें इस प्रकार से इनके डिस्क्रिप्शंस को प्रिपेयर करना है, अदरवाइज इनके आप एडवांटेज या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी की भी यूज कर ले। जनरली आप अपने मन से फिगर यूज करते हुए बना सकते हैं। शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटीज, ये सोमोटो टाइप्स हैं, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। इसमें ध्यान क्या रखना आपको, क्योंकि एमसीक्यू में जब क्वेश्चन बनेगा तो किस प्रकार से लो ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी, ये एंडोमॉर्फिक है, whereas ectomorphic, mesomorphic, strong legs in the arms which have medium height, it means masculine shapes in the body है, whereas ectomorphic, ये ectomorphic सबसे फैट, लो फैट ऑन देयर बॉडी। ये हमें ध्यान रखना है इनके की थिंग्स को और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अपने सॉल्यूशंस। अदरवाइज आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट, एनर्जेटिक, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, डिसिसिवनेस, टेक्निकल स्किल, रिसर्चिंग एप्टीट्यूड, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक यू कैन एड टू मेक द डिस्क्रिप्शंस इन द एग्जामिनेशंस। हमें रीडिंग सेक्शन से ये हमें ध्यान रखना है, बट स्पेशली वी मस्ट नो अबाउट दिस नाउ, विच पर्सनालिटी इज लो फैट बेली, तो ये एक्टोमॉर्फिक, ये हमें ध्यान रखना है ताकि हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बेस्ड ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर 3 प्रकार के हैं और हमें वो तीनों स्ट्रक्चर को यूज करना है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बनाना है। बट साथ के साथ में 2 मार्क्स में एक एडिशनल क्वेश्चन और बना था कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पर्सनालिटी इन द गेम्स एंड द स्पोर्ट्स। अगर आप फिगर को देखें तो देखिए क्या होता है, लेंथ, हाइट इज रिक्वायर्ड इन विच गेम्स, आप अपने मन से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, दे आर द गेम्स वेयर वी आर रिक्वायर्ड द हाइट, सो नेचुरली वी कैन यूज दिस पर्सनालिटी इन द गेम्स एंड द स्पोर्ट्स। अपने हिसाब से आप एडवांटेज एग्जाम्पल को यूज करते हुए बना सकते हैं। मीडियम हाइट हमें कहाँ रिक्वायरमेंट है, फुटबॉल, हॉकी, दे आर द गेम्स वेयर वी कैन यूज दीज पर्सनालिटीज, व्हेयरएज शॉर्ट हाइट में फैट होता है तो सुमो पहलवान, रेसलिंग, ये सब कुछ गेम्स है जहां पर कि ये इन पर्सन को हम यूज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इनके एग्जाम्पल और यूजेस को स्पोर्ट्स एंड द गेम्स में क्लासिफाइड करते हुए लिख सकते हैं। सो ये एक तरीका है 5 मार्क्स में, क्योंकि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें इसका आंसर इस प्रकार से बनाना है। डिस्क्रिप्शन में रीडिंग सेक्शन को मिक्स कीजिएगा और 3 बारीकियां कि लेंथ इज कहाँ रिक्वायरमेंट है, विच वन इज द लो फैट वैली, वो हमें ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है इस चैप्टर में। Whereas सेकंड टाइप दिया हुआ है वो है कार्ल जे जंग, जंग पर्सनालिटीज, दिस इज कॉल्ड द जंग, बोलते हैं जंग पर्सनालिटीज। जंग टाइप क्लासिफिकेशंस क्या है, इन्होंने एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट है, 3 प्रकार के बिहेवियर के पर ये पर्सनालिटीज को दिया हुआ है, वह है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड द एम्बीवर्ट। और वर्ड नोन है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यू नो अबाउट दैट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, कोई इन द शो बाय नेचर, जो कोई इन द शो होते हैं बड़े शर्मिल होते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग टू द अदर्स, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो इंट्रोवर्ट। whereas the extrovert just opposite, they can express the feeling to the others, talkative, more energetic, ये सब कुछ इनकी सिम्टम्स और हमें ध्यान रखते हुए एग्जाम में लिखना है। दोनों ही वर्ड आप लोगों के लिए नोन है, एक रीडिंग की रिक्वायरमेंट है और वी कैन राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशंस। बट एम्बीवर्ट, द पर्सन दोज हु आर हैविंग बोथ द क्वालिटीज, समटाइम्स दे आर द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट, दिस इज कॉल्ड द एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, जिसमें दोनों ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज होती हैं, दिस इज कॉल्ड द एम्बीवर्ट पर्सनालिटीज। डिस्क्रिप्शंस आर आल्सो गिवन बड़े इजी वेज में, एक रीडिंग सेक्शन से हम इन 3 वर्ड को ध्यान रखते हुए एग्जाम में अपना आंसर बना पाएंगे। 3 मार्क्स में क्वेश्चन ही बनता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। Whereas one more classification is given, that is called the Big 5 theories. Trait, it is also called the trait of the personalities. Big 5 theories, इन्होंने 5 प्रकार की टाइप्स को यूज किया हुआ है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटीज एंड द एक्सट्रोवर्जन्स। सबसे पहले चलते हैं हम लोग ओपननेस। ओपन का मतलब ओपन माइंडेड पर्सन्स, दे विल ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द लाइफ ऑलवेज नाउ। क्योंकि ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड पर्सन्स वो है हमेशा नई नई चीजों को सीखना, क्रिएशंस करना, सो दे आर द टाइप्स। ओपननेस, ओपन वर्ड को ध्यान रखते हुए अपने डिस्क्रिप्शंस ध्यान रखिएगा और उसको यूज करते हुए हमें एक इमेज को एग्जाम में लिखना है। क्योंकि ओपन माइंडेड पर्सन्स हमेशा नई नई चीजों को क्रिएशन करना, दे विल ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स और द कॉन्सेप्ट इन द लाइफ ऑलवेज, ये हमें ध्यान रखते हुए एग्जाम में अपना आंसर्स ओपननेस पर बना सकते हैं। कॉन्शियसनेस, कैन यू इमेजिन जो ग्रैंडपा
they are systematic, organized, and disciplined in the life. So conscious personalities are those who are the persons, they are systematic, organized, and disciplined in the life. So they are called the consciousness personalities. ग्रैंडपा के रूटीन लाइफ को अगर हम कंपेयर करें तो वो सिस्टमेटिक भी हैं अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइज भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं. सो हम उस कॉन्शियसनेस पर्सनालिटीज को कंपेयर करते हुए उनके रूटीन को हम बड़े आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं. Whereas the extrovert is called the extroversion, same language we can write here, extrovert and extroversions we can write the same language here. Whereas the agreeableness, जो agree करते हैं, जो disagree कभी होते नहीं है, they are very friendly and the cooperative in the life. जो हमेशा friendly होते हैं, cooperations करते हैं, so they are called the agreeableness. जो disagree कभी होते ही नहीं है. Whereas the neuroticism personalities, emotional stable person is called the neuroticism personalities. लेकिन इमोशन न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, हाई एंड द लो डिग्री. अगर हाई होगा तो किस प्रकार से, लो होगा तो क्या होगा. अगर लो है तो क्या होगा, इमोशनल स्टेबल पर्सन. न्यूरोटिसिज्म टेंड टू बी कंटेन कॉन्फिडेंस एंड द स्टेबल, वो स्टेबल रहेंगे. लेकिन अगर ये हाई होता है बाय द वे तो वो क्या होंगे, इमोशनल इनस्टेबिलिटी को गेन करेंगे. सो वहां पर एंजाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट होंगे. सो दे आर द सिम्टम्स न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटीज. ये आपकी पर्सनालिटीज. इट मीन्स अगर हम की थिंग को ध्यान रखें कि ओपननेस मतलब ओपन माइंडेड पर्सन, वेयरएज द कॉन्शियसनेस ग्रैंडपा को कंपेयर करते हुए सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइज इन द लाइफ. एक्सट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्ट और एग्रीएबलनेस जो एग्री होते हैं, इट मीन्स फ्रेंडली एंड द कोऑपरेटिव एंड द इमोशनल स्टेबल पर्सन इज कॉल्ड द न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटीज. इनको ध्यान रखें तो हम इनके डिस्कशंस को इमेजिनेशन से एग्जाम में आंसर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटीज. इन तीनों के ही वर्ड बेसिकली ध्यान रखिएगा कि इनमें अनचेंजेबल टर्म्स हैं, जो पूछा है वही लिखना होगा. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी भी एक के ऊपर में 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस बनेगा डेफिनेटली. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, वो है पर्सनालिटीज. अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर. Second topic, motivations is types in the technique. Motivations, it's a very simple topics. You know about the word motivations. Motivations means, motivation is the moving force behind every action. It is a driving force of the body which will decide the action in the life. It is of 2 type. ये 2 प्रकार का है, intrinsic and the extrinsic. It means internal or the external. Internal or external, you know about, because internal or intrinsic motivation is always goal oriented. It is target oriented, whereas the extrinsic motivation sometimes, may it is now, not every time. You know both the motivation, both the types of motivations, but exam में देखिए क्या क्वेश्चंस बनते हैं. क्योंकि अब वो ट्रेंड गया इस सब्जेक्ट में कि पहले की तरह डिफाइन व्हाट इज मोटिवेशंस, व्हाट इज इंट्रिंसिक, एक्सप्लेन द टाइप्स. ये जनरल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे कि बच्चा रात में पढ़े और सुबह एग्जाम दे, इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड चला गया. अब थोड़ा सा बिल्कुल एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन बनता है. और एप्लीकेशन क्वेश्चन जब बनेगा तो हमें सेंस, डेप्थ और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी. और इसीलिए पेपर का जब एनालिसिस करते हैं स्टार्टिंग में हम लोग, तो काफी कुछ दिया हुआ है. रिमेम्बरिंग सेक्शंस, क्रिएटिव सेक्शंस, बहुत कुछ बारीकियां दी हुई है. एप्लीकेशन क्वेश्चन जब बनेगा तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मे किल द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, हाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स मे किल द इंट्रिंसिक मोटिवेशंस. देखिए क्या क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा हुआ है. ऑफ कोर्स सिंपल है, पर कुछ बच्चों ने गलतियां क्या की है वो ध्यान रखिएगा. आप लिख सकते हैं, पर लिखना किस प्रकार से, क्या तरीका, क्या सोच हमें यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर लिखना है. I will put up an example. Farhan, he want to become a wildlife photographer in the Three Idiots movie. I think so everyone have seen this movie. In the Three Idiots movie, the Farhan, he want to become a wildlife photographer. Intrinsically, he want to become the wildlife photographer, but parents pull in the engineering. Parents ने क्या किया, उनको engineering में भेजा. अगर आफ्टर 3 years क्या हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस ने जब अगेन सामने आता है तो वो ही लेफ्ट द इंजीनियरिंग नाउ. तो यहाँ क्या हो रहा है, इफ द पेरेंट्स विल अप्लाई द फोर्सफुल थिंग्स इन द चिल्ड्रंस, क्योंकि पेरेंट्स ने वो एक्सट्रिंसिक फोर्स जब अप्लाई किया बच्चे के ऊपर में, तो उसका इंट्रिंसिक लेवल और वैल्यूज फील हो रही है. सो ये एग्जाम्पल, बट हम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दिस एग्जाम्पल इज रॉन्ग.
बिकॉज यू आर इन द फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर, और स्पोर्ट्स एंड द गेम्स के एग्जाम्पल को यूज करते हुए एग्जाम में आंसर लिखिएगा। जनरल और एकेडमिक एग्जाम्पल को यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंड द गेम्स का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के एग्जाम्पल को यूज करना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। Prize money in the competitions. Suppose you are the ethical players, you are playing the final match and 5 lakhs is the prize money. To gain the 5 lakh rupees, लालच में जब आता है तो we can destroy the rules and the regulation. क्योंकि हम ethical player थे, हमेशा rules को follow किया हुआ है, पर वो 5 lakhs का जो लालच है वन में अगर वो आता है तो you can break the rules and the regulations. So ये एक्सट्रिंसिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यूज जो है वो जनरली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस तरह की एग्जांपल को यूज करते हुए अगर हम एग्जाम में अपना आंसर बनाएं तो हमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्पेसिफिक अप्रोच को यूज करना है, बट सब्जेक्टिव स्पेसिफिक अप्रोच को यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बनाना है। सो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक टेक्निक्स और द मोटिवेशंस। टेक्निक्स याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि ऑल द टेक्निक्स द टीचर्स दे हैव अप्लाइड यू। किस प्रकार से, कैन यू इमेजिन दैट वो प्राइमरी सेक्शंस जहां एक टीचर ने आपसे कहा कि बच्चों ये पोएम याद करनी है, जो याद करके लाएगा उसको प्राइज मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको स्लेब पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, प्राइजेस, अवार्ड, रिवार्ड, ब्लेम एंड द पनिशमेंट, दे आर द टेक्निक टू मोटिवेट द चिल्ड्रंस। टीचर्स इन टेक्निक को यूज कर रही है। वो प्राइज मतलब बच्चों को लालच दे रही है कि याद करोगे तो प्राइज मिलेगा और नहीं करोगे तो मार पड़ेगी। इट मीन्स वो बच्चे याद कर रहे हैं, कोई मार के डर से तो कोई लालच के डर से कि हाँ ट्रॉफी मिलेगी, वट एवर सब प्राइज मिलेगा, सो इस डर से। तो मतलब ये टेक्निक्स हम पर अप्लाई की गई थी। सो प्राइजेस, अवार्ड, रिवार्ड, ब्लेम एंड द पनिशमेंट, 5 टेक्निक्स तो ये हो गई। इन एडिशन ऑफ दीज वी आर रिक्वायर्ड एडिशनल टेक्निक्स टू मोटिवेट द प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड। किस प्रकार से arrange the competitions? We can arrange the competitions between the players on the ground. It highly motivate the children. Now achievement level of the coach, they will also motivate you. Coach as a motivator, proper provisions of the facilities. Ground का surface colorful है, equipment बिल्कुल बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, तो क्या होगा, वो हमें automatically inspiration देते हैं, motivate करते हैं। One more technique वो होती है presence of others। प्रेजेंस ऑफ अदर्स, क्योंकि प्रेजेंस दो प्रकार की होती है और इन पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। वो होती है फेवरेबल एंड द होस्टाइल। फेवरेबल क्या होती है, इंडिया का मैच इंडिया में चल रहा है तो क्या होगा, फेवरेबल spectators, they are sitting surrounding now in the stadium, so they are cheering you, they are boosting you, so you will highly motivated between them. But यही audience क्या होगी अगर मैच पाकिस्तान में होता है तो वो supporters क्या करते हैं, they are pinching you, they are commenting you, they are throwing the garbage। तो वो सभी कुछ spectators जो hostile है वो आपको demotivate भी कर सकते हैं। सो ये दोनों ही यहाँ पर टेक्निक के रूप में होता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। प्रेजेंस ऑफ अदर्स इज वन ऑफ द टेक्निक। वन मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक to motivate the children, that is the goal setting. Set the goal which will inspire you in the life. About the goal, 1 marks and the 5 marks, both the types of questions was put up in the examinations, and but I think so in the booklet the discussions is not given. So about the goal you must know the certain things. Goal, it is of two type. Goal दो प्रकार के होते हैं। One is called the achievable goal, the goal which we can achieve in the life. This is called the achievable goal, whereas the goal which we cannot achieve in the life, this is called the non-achievable goal, that is called the non-realistic goal. It means goal, it is of two types. Achievable goal, it means realistic goal, whereas a non-achievable goal, it means non-realistic goal. There are the two types of goal. Your goal is goal, of course your goal is goal. One more questions to be put up in the examinations. What principle should be followed for the goal setting? When you will set the goal in the life, which principles you have to follow? It means क्या principles होने चाहिए जिन पर आपका गोल जो वो बेस्ड होना चाहिए। देखिए कोटा जब हम आए थे एक प्लेटफॉर्म के रूप में, यहाँ जब स्टडी के लिए हम लोगों ने एलन को चुना, तो बिफोर सेटिंग दिस गोल आप लोगों ने क्या प्रिंसिपल को चूज करना चाहिए, सेट करना चाहिए, वही हमें इमेजिनेट करते हुए एग्जाम में पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर्स बिल्डअप करना है। व्हेनेवर यू विल सेट द गोल इन द लाइफ, सबसे पहला पॉइंट आता है दिमाग में कि नो योर लिमिट, चेक योर लिमिट। इफ यू हैव अ लिमिट to chase the goal, you just set the goals. Know your limit. Number 2 is check your capabilities. Before setting the goal, check your capabilities. अपनी capabilities को check करेंगे, can I capable to solve, to chase this goal or not? If you are having the capability, you just choose the goal. The goal should be based on the interest of the children or the persons. Now, children और interest based होगा तो naturally वो बड़ा अच्छा goal, achievable goal में convert होगा. It means goal perfect होगा जो हम chase कर पाएंगे.
एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स, जब भी गोल चूज करें तो एंटिसिपेट करें उन प्रॉब्लम्स को जो गोल को चेज करने में हो सकती है। अगर आपने ये काम किया है तो बड़ा अच्छा गोल आप चूज कर पाएंगे और सेट कर पाएंगे लाइफ में। द गोल शुड नॉट बी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योर्स, आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में जाएंगे। सो दीज आर द गोल सेटिंग। ये एक बेसिक थिंग्स हैं जिनमें आप अपनी फिलोसफी या अपने विचार, अपने आइडियाज को भी और यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर और बेटर बना सकते हैं। सो कंटेंट्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स को बिल्डअप करते हुए एग्जाम में आंसरिंग कीजिएगा। एंड डोंट राइट द पैराग्राफ, पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो वहां मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिलने की संभावना कम होती है। whereas पॉइंट इज द कीवर्ड ऑफ द पैराग्राफ, और पॉइंट के थ्रू अगर आप आंसरिंग करते हैं तो आपको मार्क्स जो है बड़े में आसान से मिल जाती है। अब ये इमेजिनेशन में अपनी नॉलेज को चेक किया, इन टॉपिक को समझा, अब कंटेंट्स के रूप में वही सब कुछ लिखा हुआ है, टेक्निक्स में वही है, गोल सेटिंग, कॉम्पिटिशन, इक्विपमेंट, रिवार्ड, अवार्ड, प्रेजेंस। इट मीन्स एक रीडिंग सेक्शन से हम पूरे बुक को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसके बेसिस पर अपना आंसर हम बना सकते हैं। दिस इज द सेकंड नंबर टॉपिक इन दिस चैप्टर। थर्ड नंबर टॉपिक वो भी बड़ा आसान टॉपिक है, बट 3 वर्ड वहां भी ध्यान रखने हैं जो कि बड़े सिंपल से हमें यूज करने हैं एग्जाम में। aggressions, meaning and the concept and the types of aggression in sports। aggression क्या होता है, जिसे हम गुस्सा बोलते हैं। aggression is that type of the behavior in that the person can harm ourselves or to the others। साइकोलॉजी में एग्रेशन को इस प्रकार से लिखा हुआ है, एग्रेशन इज दैट टाइप ऑफ द बिहेवियर इन दैट द पर्सन कैन हार्म आवरसेल्फ और टू द अदर्स, जहां हम अपने आप को या किसी और को हार्म कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी में डेफिनेशन से हैं जिसे आप बड़े आराम से एग्जाम में 1 मार्क के टर्म के रूप में यूज कर सकते हैं या इससे रिलेटेड कोटेशंस को एग्जाम में बना सकते हैं। whereas the types, there are the 3 types of the aggression: hostile हुआ, assertive हुआ and the instrumental। there are the 3 types of the aggressions। hostile का मतलब झगड़ालू। अगर आपके पास में सपोज करो हॉकी स्टिक है, उसको उठाया आपने और पड़ोसी के घर जाके आप यू आर बीटिंग द अपोनेंट नाउ, or what you are doing, this is called the hostile aggression। what is your target now? to harm to the others now, मतलब harming is the aim, harm करना किसी को उद्देश्य है। physical injuries can be done or can be possible in this now, so this is called the hostile। assertive मतलब bold मतलब verbally you are harming you, मतलब इंटेंशन इज नॉट द फिजिकल इंजरीज, आपका फिजिकल इंजरीज की इंटेंशन नहीं है, आप हार्मिंग कर रहे हैं वर्बली बाय ओरली, सो दिस इज कॉल्ड द assertive। whereas instrumental, जिसे हम बोलते हैं different behavior, instrumental aggression is the behavior that has the intent to hurt in order to achieve money, praise or victory। it means तीनों ही टाइप बड़े सिंपल हैं और आप एक रीडिंग सेक्शन से इन 3 वर्ड को ध्यान रखते एग्जाम अपना टाइप पर आंसर बना सकते हैं। aggression plays a पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ द रोल्स ऑन द ग्राउंड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनने की प्रोबेबिलिटीज है। व्हाट इज द रोल ऑफ द अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। सो बड़े आराम से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोल्स को आप एक रीडिंग सेक्शन से लिख सकते हैं। सो देयर आर द 3 टॉपिक्स और आई थिंक तीनों ही टॉपिक में हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना, तो वो क्या है। टाइप्स, इट इज अनचेंजेबल। शेल्डन, नाम ध्यान रखिएगा, इमेज बनाइएगा। एक्टो, एंडो एंड मेसोमॉर्फिक, ये 3 टाइप के शेल्डन ने किए हुए हैं क्लासिफिकेशंस। वेरएज जंग ने, कार्ल जे जंग ने क्या किया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड द एम्बिवर्ट। वेरएज द बिग 5 थियरीज, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिक पर्सनालिटी एंड द एक्सट्रोवर्जन्स। ये 5 पर्सनालिटी टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। सो ये टाइप्स में ध्यान रखने हैं और एग्रेशन के टाइप, अगर हम टाइप को भी ध्यान रख लें तो एक 2 रीडिंग सेक्शन से हम एग्जाम में इनके क्वेश्चन के आंसर हम बना सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज है। 3 मार्क्स में एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इसे यहाँ से, बट 5 मार्क्स में बनने की प्रोबेबिलिटीज है यहाँ इस चैप्टर से। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। These steps will help you to prepare this chapter।